ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا، ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا، بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ مجھے حیرت ہے گل رحمان، تم تو بڑی شستہ اردو بول لیتے ہو۔ گل رحمان نے کہا، میں اس قبائلی علاقے میں پیدا ہوا تھا، مگر میری پرورش ان علاقوں میں ہوئی ہے جہاں اردو عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ میں نے پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا، اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی داخلہ لیا تھا، لیکن چند مہینوں کے بعد چھوڑ کر واپس آ گیا۔ شارق بولا، مجھے واقعی حیرت ہو رہی ہے، اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ۔ گل رحمان نے اس کی بات کاٹ دی، بولا، تم نے بھی تو جیل میں رہتے ہوئے گریجویشن کیا ہے۔ شارق اچھل پڑا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ گل رحمان اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا تھا، اور یہ تمام معلومات اسے یقیناً حاجی عبداللہ نے فراہم کی ہوں گی۔ کوئی بھی بین الاقوامی گروہ کسی نئے آدمی کو ساتھ ملاتا ہے یا کسی سے کام لیتا ہے تو اس کے بارے میں تمام معلومات پہلے سے جمع کر لیتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ نولکھے کے بارے میں بھی ان کے پاس مکمل معلومات ہوں گی، البتہ سمینہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گل رحمان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شارق صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ جب جرائم کی دنیا میں آتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ معمولی نہیں ہوتی۔ تم اپنی مثال لے لو، تم خوشی سے تم مجرم نہیں بنے، تمہارے ماں باپ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا، اور انصاف فراہم کرنے کی بجائے الٹا تمہیں ہی جیل میں ٹھونس دیا، اور جب تم جیل سے رہا ہوئے اور تم نے شرافت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی تو قانون کے محافظوں نے تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ بے گناہ ہونے کے باوجود، سزا کاٹنے کے بعد بھی تم سب کچھ بھول جانا چاہتے تھے، لیکن تمہارے سینے میں دبے ہوئے انتقام کے جذبے کو ابھارا گیا، اور پھر انسانیت کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال پیش آئی تھی، جس نے مجھے یہ مجرمانہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ شارق بولا، کیا تمہارے ماں باپ کو بھی؟ شارق نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گل رحمان نے اس بات میں سر ہلایا، بولا، ہاں، میرا باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور تم جانتے ہو ان پہاڑوں میں قبیلوں کے مابین دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہمارے قبیلے کی بھی کسی اور قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ میرا باپ ان پڑھ ہونے کے باوجود فطرتاً امن پسند اور صلح جو آدمی تھا۔ وہ ان پڑھ تھا لیکن تعلیم کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں 2 اسکول بنائے تھے، مگر دوسرے قبائلی سرداروں کو یہ پسند نہیں تھا۔ میرا باپ چاہتا تھا کہ میں بھی پڑھ لکھ کر ان پہاڑوں میں علم کے چراغ روشن کروں، اس لیے وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ میں اس وقت آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھا، میرا پہلا ہی سال تھا۔ ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے مخالف قبیلے کے لوگوں نے ہماری بستی پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ بستی 8-10 گھروں پر مشتمل تھی جسے گھیرے میں لیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے میرے باپ کے گھر کو آگ لگا دی، اور چاروں طرف سے مکان پر مشین گنوں سے گولیوں کی بارش کی جانے لگی۔ اس طرح میرے ماں باپ زندہ جل گئے۔ میں یہ اطلاع ملتے ہی واپس آ گیا۔ قبیلے کے لوگ میری واپسی کی اطلاع پا کر میرے گرد جمع ہو گئے۔ ہر شخص کے سینے میں انتقام کا لاوا کھول رہا تھا۔ اسلحے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ افغانستان کی جنگ نے ہماری یہ مشکل حل کر دی تھی۔ ان دنوں روسی فوجیں افغانستان پر قابض تھیں۔ مختلف علاقوں میں ان کے اسلحے کے ڈپو یا تو تباہ کیے جا رہے تھے یا لوٹے جا رہے تھے۔ مجاہدین کو لڑنے کے لیے اسلحے اور گولہ بارود کی ضرورت تھی، لیکن ایسے گروہ بھی مارز وجود میں آ چکے تھے جو مجاہدین کے بھیس میں روسی فوجیوں کے کیمپوں سے اسلحہ لوٹ کر یا تو مجاہدین کے ہاتھوں فروخت کر دیتے یا زیادہ پیسے کے لالچ میں سرحد پار کر کے پاکستانی علاقے میں لے آتے، جہاں سے اسلحہ پورے ملک میں پھیل رہا تھا۔ میرے آدمیوں کے پاس اسلحے کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس ہیوی مشین گنوں کے علاوہ راکٹ اور لانچر بھی موجود تھے۔ میرے دشمن قبیلے کو میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی تھی، لیکن ہم نے انہیں مزید تیاری کا موقع دیے بغیر چاروں طرف کے پہاڑوں پر مورچے جما لیے اور رات کو ان پر حملہ کر دیا۔ میرا دشمن قبیلہ بھی پوری تیاری سے تھا۔ میرے آدمیوں کے پاس ایک سٹنگر میزائل بھی تھا۔ وہ لانچر اور میزائل کو پہاڑی کی چوٹی پر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے وہ میزائل فائر کر دیا گیا اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ اس سٹنگر میزائل کے بارے میں سرکاری حلقوں میں یہ رائے قائم کی گئی کہ یہ سرحد پار سے داغا گیا تھا۔ ان دنوں صورتحال کچھ ایسی ہی تھی کہ افغان مجاہدین روسی فوجوں کے کیمپوں پر حملے کے بعد پاکستان کی طرف بھاگ آتے تھے، اور روسی گنشپ ہیلی کاپٹر ان کا تعاقب کرتے ہوئے میزائل داغتے رہتے تھے۔
इस तरह कई रॉकेट और मिसाइल पाकिस्तानी इलाकों में आकर गिरते थे, जिससे जानी और माली नुकसान भी होता था और हुकूमत पाकिस्तान अफगान इंतजामिया से एहतजाज करके रह जाती। उस रोज़ भी अफगान इंतजामिया ही से एहतजाज किया गया था। मैं वापस चला जाना चाहता था, लेकिन मुझे बाज़ ऐसे लोग मिल गए थे जो मुझे यहाँ रोकना चाहते थे। पहले तो मैं समझा कि वो मेरे हमदर्द हैं, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि वो लोग मेरे जरिए अफगानिस्तान से असलहा और हेरोइन स्मगल करना चाहते थे। मैं उनके झांसे में आ गया और मैंने उनके इशारों पर काम शुरू कर दिया। पहले तो मैं उन लोगों के लिए असलहा ही स्मगल करता रहा, लेकिन फिर हेरोइन की तरफ मुतवज्जे हो गया। हेरोइन में ज़्यादा मुनाफा था। पहले मैं दूसरों के लिए काम करता था, फिर मेरे भी ऊपर के लोगों से रवाबित हो गए। मैंने इंडिपेंडेंट होकर काम शुरू कर दिया। फिर मेरी मुलाकात पेशावर में लाहौर के हाजी अब्दुल्ला से हुई। वो एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी गिरोह के जनूबी एशिया जोन का सरबराह है। इस जोन में 2 बड़े मराकज़ हैं जहां से सबसे ज़्यादा हेरोइन बैरूनी ममालिक को भेजी जाती है, पाकिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल बर्मा, लाओस और थाईलैंड पर मुश्तमिल है। वहां भी बड़े बड़े जुगादरी और बैनुल अक़वामी स्मगलर मौजूद हैं, लेकिन हाजी अब्दुल्ला का उन सब पर कंट्रोल है। बहुत खौफनाक किस्म का आदमी है हाजी अब्दुल्ला। गुल रहमान खामोश हो गया। नौलखा, समीना और शारिक मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। समीना और शारिक तो हाजी अब्दुल्ला से कई बार मिल चुके थे, लेकिन उन्हें उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी जो उसे खौफनाक साबित करती। और अब जो इंकशाफात हुए थे उससे तो ये बात साबित होती थी कि वो वाकई बहुत खौफनाक आदमी था। जो शख्स आज़ाद इलाके के खूंखार कबाइलियों और गोल्डन ट्रायंगल में सरगर्म चीनी, बर्मा और थाई माफिया के खूंखार भेड़ियों को कंट्रोल कर रहा था, वो वाकई खौफनाक था। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, अब हमारे लिए क्या प्रोग्राम है? गुल रहमान बोला, तुम लोगों के लिए प्रोग्राम यह है कि 2-3 दिन यहीं रहो इस मकान में। ये मकान मेरा है जो सीजन में सयाहों को किराए पर दिया जाता है, लेकिन जहाँ ये कॉटेज बनाने का असल मकसद कुछ और है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे 1 हफ्ता पहले इत्तला मिल गई थी कि लाहौर से एक पार्टी आ रही है, इसलिए मैंने ये कॉटेज किसी को किराए पर नहीं दिया। दरअसल वो कहते कहते खामोश हो गया। फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मिशन नूरिस्तान तकरीबन महीना पहले बनाया गया था, लेकिन इसके लिए कोई मुनासिब आदमी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये मामला टलता रहा और बिलाखिर इस मकसद के लिए हाजी अब्दुल्ला ने तुम्हारा इंतखाब किया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम पहले भी एक मिशन कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचा चुके हो। नौलखा और ये समीना भी उस मिशन में तुम्हारे साथ थे, और उस मिशन की कामयाबी ही के बायस मिशन नूरिस्तान के लिए भी तुम लोगों का इंतखाब किया गया है। समीना के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि ये भी तुम्हारे साथ होगी। बहरहाल तुम लोगों का प्रोग्राम ये है कि 2-3 दिन यहीं रहोगे। जरगून शहर से मलिक फरीद की तरफ से सिग्नल मिलने के बाद तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओगे। वो एक बार फिर खामोश हुआ और अपने दाएं तरफ बैठे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। बोला, ये तूर खान है और ये बाजिद खान है। उसने दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया। फिर बोला, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे और तीसरा आदमी सुरखाब इस वक्त यहाँ नहीं है, कल वो आ जाएगा और वो भी तुम लोगों के साथ ही जाएगा। समीना बोली, क्या हम इसी मकान तक महदूद रहेंगे? गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग यहाँ इस कॉटेज में किराएदार की हैसियत से रहोगे। अंदरूने मुल्क और बाहर से आने वाले सयाह यहाँ आते रहते हैं, इसलिए किसी को तुम लोगों पर शुबा नहीं होगा। तुम लोग आजादी से जहाँ चाहो घूम फिर सकोगे। अलबत्ता तुम लोगों की हिफाजत के लिए तोर खान यहाँ रहेगा। इसके बारे में तुम यही बताओगे कि तुम लोगों ने किराए पर इसकी खिदमात हासिल कर रखी हैं। नीचे नशेब में दरिया बह रहा है, वहाँ दरख्तों के झुंड में एक छोटा सा कमरा है जिसमें मछलियाँ पकड़ने का सामान रखा हुआ है। उस दरिया में दुनिया की बेहतरीन मछलियाँ पाई जाती हैं। शहर की तरफ जाने के लिए तुम लोग दरिया वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ से फासला कम पड़ेगा। शारिक ने सर हिलाया। बोला, ठीक है, यहाँ हमारे खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा? गुल रहमान बोला, तोर खान खाना पकाने का माहिर है। मिशन के दौरान भी ये तुम लोगों को मजे मजे के खाने खिलाता रहेगा। फिर वो इधर उधर देखने लगा। बोला, उमर कहाँ चला गया? शारिक बोला, वो हमें चाय पिलाने के बाद दरिया की तरफ चला गया था। गुल रहमान बोला, ओ, वो यकीनन मछलियां पकड़ने गया होगा। बड़ा ही मेहमान नवाज लड़का है। इस मर्तबा नौलखे ने कहा, इसमें शुबा नहीं है। उसने यहाँ आते ही हमें चाय बनाकर पिलाई थी। वैसे वो लड़का है बड़े कमाल का। गुल रहमान हंस पड़ा। बोला, आहा, इसका मतलब है कि उसने यहाँ आते ही तुम लोगों को अपना कमाल दिखा दिया। नौलखा बोला, बिल्कुल जी। क्या वो तुम्हारा बेटा है? गुल रहमान बोला, नहीं, इसी शहर का रहने वाला है। तकरीबन 5 साल पहले उसका बाप पहाड़ी से गिर कर मर गया था। उसे मैंने अपने पास रख लिया। उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। निशानेबाजी में पूरे इलाके में उसका सानी नहीं है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसमें निशानेबाजी के मुकाबले भी होते हैं। ये बड़ों के मुकाबले में हिस्सा लेता है और 2 साल से ट्रॉफी जीत रहा है। अंधेरे में भी आवाज पर निशाना लगा लेता है और इसका निशाना कभी खता नहीं जाता। नौलखे ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो हमने देख लिया।
आज 3 ग्लास तोड़े हैं उसने। गुल रहमान बोला, उसकी राइफल का निशाना देखो तो तुम्हें और हैरत होगी। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मेरा ख्याल है बाहर बैठते हैं और तुरखान तुम हमें चाय तो पिलाओ। तुरखान ने कहा, बिल्कुल पिलाता हूँ खान। वो लोग बाहर आ गए जबकि तुरखान बावर्ची खाने में चला गया। उसी वक्त उन्हें दरिया की तरफ से उमर आता दिखाई दिया। उसने पुश्त पर कुछ लाद रखा था। वो जो कुछ भी था रस्सी में बंधा हुआ था और उसने एक हाथ से कंधे पर रस्सी को पकड़ रखा था। वो लोग बरामदे में कुर्सियों पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद उमर ऊपर आ गया। उसने 6 अदद मछलियां पुश्त पर लाद रखी थी जो एक रस्सी में पिरोई हुई थी। वो ट्राउट फिश थी। वाकई खाने के लिए दुनिया की बेहतरीन और लजीज मछली थी। गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये मछलियां तुरखान के हवाले कर दो, वो चाय बनाने के बाद इनकी सफाई कर लेगा। उमर बोला, मैं खुद इनकी सफाई करता हूँ खान। ये कहते हुए वो कॉटेज के पिछली तरफ चला गया। चंद मिनट के बाद तुरखान चाय ले आया। गुल रहमान ने कहा, इस वक्त तो तुम लोगों को बगैर दूध के चाय ही पीना पड़ेगी। शाम को तुरखान दूध ले आएगा। शारिक ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तुमने बताया था कि इस मकान का एक और मकसद भी है, उस मकसद के बारे में तुमने नहीं बताया। गुल रहमान बोला, तुम लोग चाय पी लो फिर बताता हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो उन्हें साथ लेकर उठ गया और कॉटेज के पिछली तरफ एक चट्टान पर चढ़ने लगा। चट्टान पर चढ़ने के लिए एक तंग सा उमूदी रास्ता था। वो लोग बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे थे। तकरीबन 50 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर वो रुक गए। खड़े होने के लिए बड़ी मुख्तसर सी जगह थी। दूसरी तरफ उमूदी और सपाट ढलान थी जो सैकड़ों फुट नीचे तक चली गई थी। समीना एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर खड़ी थी। वो जानती थी कि अगर उसका पैर फिसल गया तो नीचे उसकी हड्डियों का सुराग भी नहीं मिलेगा। उनके सामने एक तंग सी वादी थी जो चट्टान से तकरीबन 2000 फुट गहराई में थी। उस वादी में बहुत दूर बल खाती हुई एक सुरमई सी लकीर दिखाई दे रही थी। गुल रहमान ने इशारा करते हुए कहा, वो अली मैंगल की तरफ जाने वाली सड़क है। यहाँ इस मकान के बनाने का सबसे अहम मकसद यह है कि यहाँ से हम मीलों दूर तक इस वादी पर निगाह रख सकते हैं। शारिक मुस्कुरा दिया, बोला, गुड, बड़ी अहम जगह है। गुल रहमान ने कहा, मिलिशिया की पार्टियां भी इस तरफ पेट्रोल करती रहती हैं। जब हमारी कोई पार्टी आने वाली होती है तो हम यहाँ से निगरानी करते हैं। आगे भी पहाड़ों में हमारी इसी किस्म की निगरान और हिफाजती चौकियां कायम हैं। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। यह काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था। गुल रहमान उसे बता रहा था कि हर चौकी में एक आदमी 24 घंटे मौजूद रहता है जिसके पास इसी किस्म का जदीद तरीन ट्रांसमीटर भी है। वो उस ट्रांसमीटर के जरिए अपनी आने वाली पार्टी और मिलिशिया की गश्ती पार्टियों के बारे में गुल रहमान की इस चौकी 02 को सूरत हाल से आगाह रखता है। वो लोग तकरीबन आधा घंटा ऊपर खड़े वादी का जायजा लेते रहे, फिर वापस आ गए। शारिक ने बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो तुम्हारे ख्याल में हम कब तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे? गुल रहमान ने जवाब दिया, मलिक फरीद खान की तरफ से सिग्नल मिलने के बाद तुम लोगों की रवानगी में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की जाएगी। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, कोई पेचीदा मामला है? गुल रहमान ने कहा, मलिक फरीद दरअसल काबुल गया हुआ है। उसके वापस आने के बाद ही हमें सिग्नल मिलेगा। उस वक्त 12:30 बज रहे थे। समीना बैठे बैठे थक गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टहल लिया जाए। जब वो कुर्सी से उठी तो गुल रहमान गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। गुल रहमान ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी एक बात गौर से सुनो लड़की, यहाँ तुम इस किस्म का लिबास मत पहनो। बेहतर होगा कि तुम कोई ढंग का लिबास पहनो। इन पहाड़ों में रहने वाले कबायली बड़े खूंखार होते हैं। गुल रहमान की बात पर समीना दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर न रह सकी। वो गुल रहमान की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि कबायली औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। गुल रहमान बोला, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इन पहाड़ों में तुम्हें जगह जगह ऐसे कबायलियों से वास्ता पड़ेगा जिन्होंने बरसों किसी औरत को नहीं देखा। तुम जैसी औरत तो उनके लिए नेमत गैर मुतरक्किबा साबित होगी। समीना बोली, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ गुल रहमान। उसके लहजे में खुद एतमादी थी। गुल रहमान बोला, फिर भी मेरा मशवरा है कि तुम अपना ये लिबास तब्दील कर लो। समीना ने नौलखे को अपने साथ आने का इशारा किया और मुस्कुराती हुई बरामदे से निकलकर खुली जगह पर आ गई। नौलखा भी अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ गया और वो दोनों घास के प्लॉट पर टहलते हुए ढलान पर उतरने लगे। समीना रास्ते में रुक रुक कर फूल तोड़ रही थी। दरिया तक पहुंचते हुए उसने खासा बड़ा गुलदस्ता बना लिया था। दरिया का शफाफ पानी आईने की तरह धूप में चमक रहा था। उस जगह पर दरिया अगरचे खासा गहरा था, लेकिन पानी शफाफ होने की वजह से नीचे बड़े बड़े पत्थर साफ नजर आ रहे थे। कभी कभी कोई मछली भी तैरती हुई नजर आ जाती, लेकिन जब समीना ने गौर से देखा तो पता चला कि यहाँ मछलियां भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। दरिया का बहाव खासा तेज था। समीना ने हाथ में पकड़ा हुआ गुलदस्ता दरिया में उछाल दिया। फूल पानी में बिखर गए और तेज रफ्तार पानी के साथ तैरते हुए बहुत जल्द निगाहों से ओझल हो गए। समीना ने पैरों से जॉगर्स उतार लिए
और किनारे के एक पत्थर पर बैठकर पैर पानी में लटका लिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने बड़ी तेजी से पैर बाहर खींच लिए। नौलक्खे ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? समीना बोली, बहुत ठंडा पानी है। कुछ देर के बाद उसने पैर दोबारा पानी में लटका दिए और आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। पानी वाकई बहुत ठंडा था। उससे चंद फुट के फासले पर नौलक्खा भी पानी में पैर लटका कर बैठ गया। नौलक्खा उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं समीना बीबी। ठंडा मीठा और शफाफ पानी, पुरसुकून माहौल, आलूदगी से पाक फजा, ताज़ा हवा। शहर में रहने वालों को ये सब कुछ कहाँ नसीब होता है। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, खुदा ने इंसान के लिए बड़ी नेमतें पैदा की हैं, लेकिन इंसान ही नाशुक्रा है। उसने कभी इन नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा नहीं किया और हवस में कभी कमी नहीं आने दी। नौलक्खा बोला, ये तो तुम ठीक कहती हो समीना बीबी। समीना इधर उधर देखने लगी। दरिया के दूसरी तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों पर बने हुए मकान बड़े भले लग रहे थे। दाएं तरफ कुछ फासले पर शहर की आबादी शुरू होती थी, लेकिन जहां से पूरा शहर नजर नहीं आ रहा था। वो तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे रहे। फिर शारिक की आवाज सुनकर वो चौंक गए। समीना ने मुड़कर देखा। मकान के बरामदे से जरा आगे खड़ा शारिक हाथ के इशारे से उन्हें बुला रहा था। समीना खड़ी हो गई। उसने जीन्स के पांचे पिंडलियों तक मोड़ रखे थे। उसने एक हाथ में अपने जॉगर्स उठा लिए और नौकर को इशारा करती हुई ढलान पर चढ़ने लगी। नौलक्खा भी उसके पीछे पीछे ही था। उसने भी अपने मोकेशन हाथ में पकड़ रखे थे। जब वो लोग कॉटेज वापस पहुंचे तो बड़े कमरे में दरी पर दस्तरखान बिछा हुआ था। खाने में सिर्फ फ्राई मछली थी जिसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। समीना ने मकान में दाखिल होने से पहले अपनी जीन्स के पांचे सीधे कर लिए थे। मछली वाकई बहुत लजीज थी। उसमें फ्राई करने वाले का भी कमाल था। इससे अंदाजा हुआ कि तुरखान वाकई लजीज खाने तैयार कर सकता था। मछली खाने के बाद सब्ज कहवे का दौर चला और फिर गुल रहमान अपनी जगह से उठ गया। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग उमर के साथ वापस शहर चले जाओ शारिक बाबू, और शाम से पहले पहले अपना सामान लेकर यहाँ आ जाओ। रेस्ट हाउस वालों से कह देना कि तुम्हें एक कॉटेज किराए पर मिल गया है। तुम्हारे आने से पहले तुरखान भी राशन और दीगर जरूरी सामान लेकर यहाँ वापस आ जाएगा। तुम लोग यहाँ आजादी से घूम फिर सकते हो, लेकिन पहाड़ियों में ज्यादा दूर नहीं जाना। एक तो रास्ता भटक जाने का अंदेशा है और दूसरे। वो खामोश होकर मानी खेज निगाहों से समीना की तरफ देखने लगा। समीना उसका मतलब समझते हुए बोली, मुतमईन रहो गुल रहमान, हम तुम्हारी हिदायत पर पूरा अमल करेंगे। गुल रहमान बोला, इसी में तुम्हारा फायदा है। वो सब लोग उस वक्त बरामदे में खड़े थे। तुरखान ने कॉटेज को ताला लगाकर गुच्छे में से एक चाबी निकालकर शारिक के हवाले कर दी और गुच्छा जेब में डाल लिया। फिर बोला, हम लोग रस्से वाले पुल की तरफ जा रहे हैं, तुम लोग दरिया की तरफ चले जाओ। वो रास्ता निस्बतन करीब भी है और आसान भी। वापसी पर भी उसी रास्ते से आ जाना। गुल रहमान ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा और तुरखान वगैरह के साथ उस चट्टान की तरफ चलने लगा जिसके दूसरी तरफ नदी पर रस्सों का पुल था। उनके तकरीबन आधे घंटे बाद शारिक वगैरह भी रवाना हो गए। उनका रुख दरिया की तरफ था। ढलान के इख्तिताम पर वो दरिया के साथ साथ चलते रहे। दरिया बल खाता हुआ बह रहा था। उनके और शहर के दरमियान चट्टानें हायल थीं। वो जैसे ही दरिया के साथ घूमकर दूसरी तरफ आए, उन्हें शहर दिखाई देने लगा। मजीद आधे घंटे बाद वो शहर पहुंच गए। बड़ी रौनक थी शहर में। अंदरूने मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी सयाहों के अलावा गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। गैर मुल्की औरतों के लिबास जाहिर है वैसे ही थे जो हमारे माशरे में बाइसे शर्म समझे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ऊंची सोसाइटी में इस लिबास को फैशन समझकर अपना लिया गया है। समीना को बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी खवातीन भी नजर आईं जिन्होंने पैंट शर्ट्स पहन रखी थी। वो लोग कुछ देर तक बाजारों में टहलते रहे, फिर रेस्ट हाउस में आ गए। शारिक ने आते ही रेस्ट हाउस के मैनेजर को बता दिया था कि उन्हें एक कॉटेज किराए पर मिल गया है, इसलिए वो 6 बजे के लगभग रेस्ट हाउस छोड़ देंगे। समीना थक गई थी। वो कमरे में दाखिल होते ही बेड पर ढेर हो गई। शारिक और नौलक्खा कुर्सियों पर बैठ गए थे। 5 बजे वो रवानगी की तैयारियां करने लगे। समीना ने बिखरे हुए कपड़े समेटकर बैग में ठूंस लिए और 6 बजे से पहले ही वो रेस्ट हाउस से निकल आए। उस वक्त सूरज मगरबी पहाड़ियों की तरफ झुक रहा था। ये लोग बाजार से होते हुए दरिया की तरफ चलने लगे। अगर उन्हें ये इल्म होता कि पहाड़ी इलाकों में शाम जल्दी हो जाती है तो ये लोग 1 घंटा पहले ही रेस्ट हाउस से निकल आते। जब वो बाजार से बाहर निकले तो सूरज गुरूब हो चुका था और शाम बड़ी तेजी से फैल रही थी। पहाड़ी इलाकों में रात की तारीकी में चलना खतरे से खाली नहीं था। उनके पास कोई टॉर्च भी नहीं थी, लेकिन ये भी गनीमत था कि वो लोग जिस रास्ते से आए थे उस तरफ ज्यादा नशीबो फराज नहीं थे। वो लोग बढ़ते हुए अंधेरे में तेज तेज कदम उठाते हुए चलते रहे और बिलाखिर एक जगह रुक गए। बाईं तरफ बुलंदी पर एक जगह रोशनी नजर आ रही थी। समीना ने उस तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है वो हमारा ही कॉटेज है। शारिक बोला, हाँ मेरा भी यही ख्याल है। वो दरिया से जरा हट कर ढलान पर चढ़ने लगे। वो कॉटेज तकरीबन 300 फुट की बुलंदी पर था। वहां तक पहुंचते हुए समीना हाँप गई। बरामदे में मेज पर पेट्रोमैक्स रखा हुआ था।
लेकिन तुरखान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शारिक ने एक दो आवाजें भी दी और फिर अचानक ही तुरखान तारीकी से निकलकर सामने आ गया। तुरखान ने उनका सामान उठाकर कमरे में पहुंचा दिया और खुद बावर्ची खाने में घुस गया। वो लोग बरामदे ही में कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद समीना उठकर अंदर आ गई। उनके बैग बड़े कमरे में रखे हुए थे। एक कोने में केरोसिन लैंप जल रहा था, दूसरे दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और उन कमरों में भी केरोसिन लैंप जल रहे थे। समीना ने बैग को बेड पर रख कर खोला और स्लीपिंग सूट निकाल लिया। ये स्लीपिंग सूट भी पाजामे और बुशर्ट पर मुश्तमिल था। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली और अपनी टी शर्ट उतारना ही चाहती थी कि उसकी नजर अकबी खिड़की की तरफ उठ गई। खिड़की खुली हुई थी। उसने आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। उसमें शीशे लगे हुए थे लेकिन पर्दे नाम की कोई चीज नहीं थी। बाहर तारीकी थी लेकिन कमरे में लैंप की रोशनी थी। समीना के समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सूरत हाल में लिबास कैसे तब्दील करे। ये सीधी सी बात उसके जहन में नहीं आई थी कि बैग से कोई कपड़ा निकाल कर या बिस्तर की चादर उठाकर खिड़की पर डाल ले। अलबत्ता उसने लैंप की रोशनी कम कर दी और एक तरफ होकर कपड़े तब्दील करने लगी। समीना ने शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी और बुशर्ट उठाना ही चाहती थी कि यकदम चौंक गई। उसे यूं लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई दबे कदमों चल रहा हो। उसने मुतवहश निगाहों से खिड़की की तरफ देखा और एक झटके से बुशर्ट उठाकर रुख बदल कर खड़ी हो गई। उसने बड़ी जल्दी में बुशर्ट पहनी, बटन लगाए और लपक कर खिड़की के करीब पहुंच गई और एक झटके से खिड़की खोल दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। समीना इसे अपना वाहिमा समझकर दोबारा बेड के करीब आ गई। वो खिड़की के करीब बड़ी तेजी से और अचानक ही पहुंची थी। अगर वहां कोई होता तो जरूर नजर आ जाता। अगर वो भाग गया था तो उसके कदमों की आवाज ही सुनाई दे जाती, लेकिन न तो कोई नजर आया था और न ही किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। समीना ने कपड़े तब्दील किए। उतारे हुए कपड़े उसने उसी तरह पलंग पर पड़े रहने दिए और लैंप की रोशनी तेज करके बाहर आ गई।